Hi everyone, welcome to our channels. Today we are going to learn about the next chapter, which is multiplication and division of fractional number. In our previous chapter we have already learned about the addition and subtraction of fractional number. So I hope you have understand the basic concept of adding and subtracting the fractional number. Now we will check how can we multiply and divide the fractional numbers. Okay. So as we know, first thing is multiplication. In multiplication, we know multiplication means the repetitive addition. Okay, repetitive addition means if I am asking 2 multiply 3, if I am asking 2 multiply 3 means 2 multiply 2 multiply 2, right? No. 2 plus 2 plus 2, sorry. So 2 plus 2 plus 2. तो ये हम लोग जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रिपीटेटिव एडिशन होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग फ्रैक्शनल नंबर में भी लेंगे तो मान लेते हैं फ्रैक्शनल नंबर में 2 डिवाइड बाय 3 दिया हुआ है। तो 2 डिवाइड बाय 3 मान लो 4 टाइम्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइड, इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 divided by 3 plus 2 divided by 3 plus 2 divided by 3. How many times? 4 times. Okay. So this will be 2 plus 2 plus 2 plus 2 divided by 3. So how much? 1, 2, 3, 4. 4 times 2 means 8, right? 8 divided by 3. Okay. और इसको और इजीली अगर करना चाहोगे तो वेरी इजीली हम लोग यहाँ से भी निकालते हैं, जो कि इस तरह से होता है। इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा, आप जस्ट यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद दिस। सो 4 2 आर 8, 8 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शनल नंबर विद द काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ वी विल चेक द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव. Okay, before going to the next, let's take an example. There is a question which is asking 3 over 1 by 4. 3 over 1 by 4. We have to divide, or sorry, we have to multiply. So write first multiply. Multiply 3 over 1 by 4. 3 over 1 by 4 by 5. By 5. So this we have to multiply. So first thing we already have learned in our previous chapter how to convert this mixed fraction into unlike fractions, right? So first we will convert this. So 4 3 are 12. 12 plus 1 is 13. 13 divided by 4 by you have to multiply by 5, right? तो यहाँ पे ये हो जाएगा. अब जो है just we have to multiply the numerator only, denominator will be 4 only. So 13 5 are how much? 3 5 are 15, 5 1 carry, 5 1 are 5 plus 1 is 6, 65, right? Divided by 4. So the answer will be 65 divided by 4. And if you convert this mixed fraction into the, this fraction into mixed fraction, then how can it will be? So 65 divided by 4. Okay, how many times? 4 1 are 4, 2 25, 4 6 are 24. So 1, right? So 1. So 1 is remainder means 16. 16 is the quotient. So first we will write 16. Or 1 is the remainder. 1 we will write in numerator and 4 divided by 4. So 16 over 1 by 4 will be the product of this two number. तो अभी तो ये तो था कि हम लोग जो फ्रैक्शनल नंबर और होल नंबर साथ में रहता है, then how can we multiply? Now we will check how can we multiply two fractional number, right? So let's see how can we multiply two fractional number. Now suppose it is given that we have to multiply, we want to multiply 7 by 8 by 2 by 3. So
7 divided by 8 by 2 divided by 3. This is the multiplication given. Then how can you do this multiplication? Okay. So सबसे पहले इसमें क्या होता है हम लोग समझेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग का अगर ये नंबर है 7/8 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो है हम लोग का इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। 7 2 are 14 डिवाइडेड बाई 3 8 are 24। अब जो है इसको हम लोग फाइनल आंसर निकालने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हम लोग इसको और भी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। आप यहीं पे रिड्यूस कर सकते हो। जैसे मान लो हम लोग जानते हैं 2 1 are 2 and 2 4 are 8, राइट। तो यहाँ पे कट गया। तो इस तरह से अगर रिड्यूस कर सकते हो तो आप रिड्यूस कर देना। तो 7 मल्टीप्लाई 1 बचेगा हम लोग का यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 बचेगा हम लोग यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 12, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर दो फ्रैक्शनल नंबर रहता है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते समय अगर ऊपर और नीचे का कोई भी नंबर, ये अगर इससे कटता है तो भी काटेंगे, ये अगर इससे कटता है तो भी कट जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी अगर रिड्यूस होता है तो आप रिड्यूस कर दोगे। तो ये हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जहां पे दोनों मिक्स फ्रैक्शन अगर रहता है तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब मान लो हम लोग का क्वेश्चन जो है 1 whole 1 by 2 है एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 whole 3 by 5. Now first thing, in case of mixed fraction you have to convert this mixed fraction. So if you convert this it will be 2 1 2 plus 3, so 3 divided by 2 multiply here 5 2 10 10 plus 3 13, so 13 divided by 5. तो यहाँ पे कोई भी करने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसको जो है चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर रिड्यूस कर सकते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। सो 3 into 13, 3 multiply 13 divided by 2 multiply 5, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 3 नहीं होगा, अच्छा ठीक है, 203 सही है, सही है। So this will be 3 multiply 13 divided by 2 multiply 5. तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 3 into 13 3 are 9, 3 1 are 3, 39 divided by 5 2 are 10. तो 39 divided by 10 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 3 whole 9 by 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 39 को 10 से डिवाइड करते हो तो क्वोशिएंट हो जाएगा 3, तो 3 को हम लोग ने पहले लिखा और रिमाइंडर 9 बच जाएगा तो 9 को नीचे लिखा और 10, 3 whole 9 by 10 will be the required answer. तो ये सारी चीजों से हम लोग का कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर हम लोग दो फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और उसी समय हम लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि if we can reduce the numbers into the lowest fraction, अगर कहीं कट जाता है तो उसको कट कर देना है और कहीं अगर डिवाइड कर सकते हो सेम नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स का। यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज 6.1 से एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे है 10 मल्टीप्लाई 3/4। सो 10 मल्टीप्लाई 3/4 है, तो सबसे पहले आप इसको रिड्यूस करोगे लोएस्ट टर्म में, क्योंकि हम लोग का जानते हैं 2 2 और 4 होता है एंड 2 5 और 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नीचे क्या बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे बच जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से पहले चेक करेंगे, अगर कुछ कट जाता है तो उसको कट कर देना है। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में रहता है तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है। तो 3 5 और 15, 15 plus 1 is 16, so 16 divided by 3 multiply 4, ठीक है। तो यहाँ पे कट सकता है, देखो नो,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 4 आर 4 6 आर 24 2 6 राइट 64 divided by 3 64 divided by 3 so now you have to convert into mixed fraction okay so कभी भी आपका नंबर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आता है, आपका फ्रैक्शंस अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आता है तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना रहता है। दो तरह का फ्रैक्शंस हम लोग ने पढ़ा था, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है, ये दोनों हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो अगर कोई भी नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहता है तो हम लोग उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो देखो कितना होगा और इसको भी करो कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 15 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो कितना होगा 7 2 are 14, तो हम लोग का 1 रिमाइंडर जाता है। जो परसेंट होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो डिविजिबल रहता है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से 7 और 1/2 हो जाएगा। अब इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया तो क्या करते हैं, हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड कर देते हैं। तो 5 3 are 15 plus 1 16 दैट इज बाय 16/3 हम लोग ने किया था। तो सेम चीज अभी 64/3 के लिए भी हम लोग करेंगे। सो 64/3 के लिए भी 64 को हम लोग जो है 3 से डिवाइड करेंगे। सो 64 डिवाइड बाय 3 3 2 are 6 ओके 3 2 are 6 so 1 4 3 1 are 3 1 10 so 21 and 1 so here it will be 21 whole 1/3 okay okay तो इस तरह से जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जो फ्रैक्शंस नंबर होता है। तो ये हो गया। अब हम लोग का ये भी सेम चीज है, इसको पहले कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 4 5 are 20 राइट 20 plus 3 is 23 so 23 divided by 4 multiply 8। तो यहाँ पे 8 है तो हम लोग जानते हैं 4 1 are 4 4 2 are 8 तो यहाँ पे 23 multiplied 2 बचा so 23 multiplied 2 इसका मतलब हो जाता है 3 2 are 6 2 2 are 4 46। तो इस तरह से हम लोग ये जो एक्सरसाइज 6.1 है these all questions we can solve by ourselves ओके। तो ये तो था द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर एंड द होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर एंड होल नंबर। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द फ्रैक्शनल नंबर टू फ्रैक्शनल नंबर। सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2 आल्सो ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो 6.2 से हम लोग ने ये एग्जांपल्स उठाया, ये क्वेश्चन उठाया। सो लेट्स सी दिस। सो यहाँ पे वेरी इजीली आपको देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कहीं से भी ये इससे या ये इससे कोई भी नंबर से अगर कट हो जाता है तो कट कर देना है। तो 7 1 are 7 7 1 are 7 ठीक है। यहाँ पे 2 1 are 2 2 5 are 10 तो सारा कट गया, बचा क्या, यहाँ पे बचा 1 multiply 1, यहाँ पे बचा 5 multiply 1 so 1 multiply 1 divided by 5 multiply 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/5। बहुत ही इजी ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, देन 2 1 are 2 ओके एंड 2 4 are 8 तो ये भी कैंसिल हो गया ठीक है। तो बचा क्या, डिनोमिनेटर में बचा 1 into 1 into 3 और डिनोमिनेटर बचा 4 into 1। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 are 3 डिवाइडेड बाय 4 4 are 16 तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी देखेंगे। इसको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन से इसमें ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 5 are 15 15 1 16 16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 6 8 are 48 48 plus 7 48 plus 7 7 to 5 1 55 right 55 ओके सो 55 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे कि अगर इसको रिड्यूस कर सकते हो लोएस्ट फॉर्म में चेक करो
ये तो जाएगा ही 2 से, सो 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 8 2 आर 16, और ये जो है 3 1 आर 3, नहीं जाएगा है ना, नहीं जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1, तो हम लोग का यहाँ पे बच गया 2 मल्टीप्लाई 55 एंड नीचे बच गया 3 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 55 मतलब हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 3। सो 110 डिवाइडेड बाय 3 को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 110 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 9 10 11 2 20, 3 6 are 20, right? No, 3 6 are 18, sorry. So 3 6 are 18, 2 is the remainder, so 36 whole 2 by 3. So answer will be 36 whole 2 by 3. तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज का 6.2 का आप बना सकते हो, ठीक है। इफ यू फाइंड एनी डाउट्स यू कैन आस्क एनी टाइम। यहाँ पे हम लोग और एक मेथड देखेंगे कि कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चंस रहता है देन हाउ कैन वी सॉल्व यूजिंग अनदर मेथड आल्सो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज 3 whole 1 by 4 मल्टीप्लाई 5। तो here we will do first without converting this in mixed fraction. So how we can do that? So here we have 3 whole 1 by 4 multiply 5. So this one we can write it as like 3 multiply 5 plus 1 by 4 multiply 5. Okay. So here the answer will be 15 plus 5 by 4. Okay. So 15 plus 5 by 4 means 15 by 1 plus 5 by 4. If you take LCM of this two, it will be 4. So 15 multiply 4 is equal to how much? 15 multiply 4, 60, right? So 60 plus 5 divided by 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 65 divided by 4। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो 65 को डिवाइड करो 4 से, 4 1 are 4, so 2 25, 4 6 are 24, so 1, so 16 whole 1 by 4, so 16 whole 1 by 4 will be the answer। तो इस तरह से भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। कभी भी रफ वर्क करना रहता है इधर मत करना, इधर करना एक लाइन खींच के, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन आल्सो, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पे होल नंबर की जगह पे फ्रैक्शनल नंबर रहता है तो भी हम लोग कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। Now I hope you can do exercise 6.1 and 6.2 by yourself. So your homework is exercise 6.1 and 6.2. If still you have any doubts, you can ask during the class. Okay. So your homework is 6.1, exercise 6.1 and 6.2. Very easy. If you understood properly about addition and subtraction, this multiplication and division also will be very easy. Okay, that's all. Thank you. Have a good time. Take care.